Ignited Minds Tutorials recently released an informative video that delves into the topic of India and other countries, specifically tailored for Class 9 students following the Maharashtra State Board syllabus. This knowledge-packed video serves as an excellent resource for students studying history, with a focus on India's interactions with various nations. The video provides a comprehensive understanding of the subject. It covers significant events, trade relations, and cultural exchanges that shaped India's history. Furthermore, the video explores the impact of these interactions on India's social, political, and economic development. By outlining India's relations with major countries, the video enables students to comprehend the global perspective of India's past. It encourages them to explore how these interactions influenced the nation's growth and helped shape its identity. Ignited Minds Tutorials video aligns perfectly with the needs of Class 9 students, capturing their attention through engaging visuals and simplified explanations. The comprehensive content ensures that students grasp the significance of India's connections with other nations and how these connections have played a critical role in shaping its history. In conclusion, Ignited Minds Tutorials video on the topic of India and other countries for Class 9 Maharashtra State Board syllabus provides an exceptional resource for students seeking to expand their knowledge of history. By offering valuable insights into India's interactions with various nations, this video serves as an invaluable tool for students aiming to understand the complexities of India's past. Okay, people, we will start with this chapter, India and other countries. India as a country and its relationship with other countries is very important. ठीक है, इंडिया कैसे प्लेस्ड है जोग्राफिकली और दूसरे देशों के साथ इसके क्या ताल्लुकात हैं, बिकॉज आज की तारीख में हमारा ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ग्लोबलाइजेशन के चलते हम दूसरे कंट्रीज से हमारा कनेक्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. क्या सारे कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं? शायद नहीं. ठीक है, और इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. हमने बहुत बार ही कोशिश किया है कि ताल्लुकात अच्छे बने रहें, लेकिन कुछ कंडीशंस के चलते ये नहीं हो पा रहा है. ठीक है, सो इसके वजह से हमको क्या नुकसान हो रहा है या उनको क्या नुकसान हो रहा है, इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है. सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ इंडिया, जोग्राफिकली ये कहाँ पे लोकेटेड है, किन कंट्रीज से ये सराउंडेड है, जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ इनके रिलेशनशिप्स क्या हैं. ठीक है, सो अभी आपने हाल ही में सुना रहेगा कि भाई साहब हमारा रिलेशन जो है मालदीव से थोड़ा सा क्लैश हो गया. ठीक है, सो मालदीव्स में हमारे बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट वेयर फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स. ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से जाते थे, लेकिन क्योंकि हमारा क्लैश हो गया, सो अगर आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, और उसमें जाने के लिए आपको भाई साहब कोई फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो दैट्स हाउ एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मालदीव्स लक्षद्वीप वॉज प्रमोटेड. सो इस तरह से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें फॉरेन रिलेशनशिप्स में चेंज लाती हैं. सो वुड आवर बिजनेस इम्पैक्ट Maldives? Yes. From Maldives used to get a huge tourist business from India itself. 2 लाख लोगों का हर साल जाना होता था उस एक आइलैंड में फॉर टूरिस्ट पर्पसेस. नाउ इट इज़ कम्प्लीटली गॉन. ठीक है, सो दो तरफा नुकसान है. ठीक है, लेकिन रिलेशन स्ट्रेन हुए हैं, किसी भी कारणवश हुए हैं, या चाइना ने उनको उकसाया है या किसी और कंट्री ने उसको उकसाया है. ठीक है, लेकिन ये सारे रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे. सो as a country, India is surrounded by many countries and has to maintain its relationship with these countries. Okay, so let's talk about India and neighbors. ठीक है, India's position, इस बार रिपब्लिक डे का परेड किसी ने देखा था? जो सीधा प्रसारण होता है जिसका, कभी भी देखा है क्या? इस बार का छोड़ो, 26 जनवरी को हुआ था. यू शुड बी वॉचिंग दीज थिंग्स. आपको इंडिया के कल्चर और डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एक लेखा जोखा देखने को मिलता है. आई डोंट नो व्हाई एज एन इंडियन यू स्टिल रिफ्रेन फ्रॉम दिस. ठीक है, एक छुट्टी मिलती है उसको भाई साहब आप एंजॉय करते हैं.
हाँ हो सकता है बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हो, बट ये इसका सीधा प्रसारण होता है और इस सीधे प्रसारण में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है. डज एनीबडी नो हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर दैट प्रोग्राम? हाँ, फ्रांस के प्रेसिडेंट. ठीक है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे ही वाज द चीफ गेस्ट. ठीक है, ये इनको क्यों बुलाया जा रहा है, मतलब किसी गणमान्य व्यक्ति को क्यों बुलाया जा रहा है, ताकि हमारा रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रांग हो. ठीक है, सो ऑल दीज आर डिप्लोमेटिक थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो इंडियाज पोजिशन इन एशिया इज जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज लहराने से या राष्ट्रगीत गाने से आप राष्ट्र के साथ कनेक्टेड नहीं हो जाते हैं. राष्ट्र को समझना और जानना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है कि हाँ भाई हम अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं इन सब में, लेकिन आप देश के बारे में जानते क्या हैं. ठीक है, देश कैसे चल रहा है इसके बारे में आप समझते क्या हैं, ये देश कितने देशों से घिरा हुआ है और ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसे हैं और इनको हम सही बनाए रखने के लिए क्या क्या अटेम्प्ट्स किए जाते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, तो इंडियाज पोजिशन इन एशिया इज जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है जोग्राफिकली, क्योंकि यहाँ से देखो आप सीधा सीवेज को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज इस पूरे लैंड रूट को यूज कर सकते हैं इधर जाने के लिए, अदरवाइज पूरे सीवेज से जाना पड़ेगा. सो जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट है. नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या हैं भाई साहब इंडिया के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका. ऑल दीज दैट यू सी आर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. ठीक है, सो इंडिया कितने ही कंट्रीज से घिरा हुआ है, देखो नेपाल, ठीक है, देन वी हैव चाइना, देन वी हैव भूटान. ठीक है, दिस इज बेसिकली भूटान. एक छोटा सा कंट्री है जिसमें आपको जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है. नेपाल में भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू डोंट नीड पासपोर्ट टू विजिट दीज कंट्रीज. म्यांमार है भाई साहब. ठीक है, दिस इज बेसिकली म्यांमार. देन वी हैव बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव्स, पाकिस्तान, ठीक है, हमारा दोस्त अफगानिस्तान. ठीक है, सो ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली कंट्रीज सराउंडेड. सो दे आर 9 कंट्रीज विच आर सराउंडिंग इंडिया. आप मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि एक जो कंट्री है वो इतने सारे कंट्रीज से सराउंडेड है. तो आप समझ सकते हैं कि कभी भी जो भी पॉलिटिक्स में होगा, जो भी सेंटर में होगा, उनको इन 9 देशों के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने हैं पहले. बाकी के देशों को तो हम बाद में निपटेंगे. ये 9 देश हैं जिनको भाई साहब ताल्लुकात आपको मेंटेन करने पे. आप समझिए आप जिस फ्लैट में रहते हैं कितने, मतलब उस फ्लोर में कितने और फ्लैट हैं, 1 2 3 4 जितने भी होंगे. आप सोचिए आपके फ्लैट अगर 9 फ्लैट से घिरे होंगे तो अजीब अजीब पड़ोसी हो सकते हैं, है ना. अजीब व गरीब पड़ोसी हो सकती है, कोई भी छोटे मोटे मामलों पे आपका द्वंद्व हो सकता है. ठीक है, सो इमेजिन इंडिया हैज़ अ बिग चैलेंज बिकॉज इट हैज़ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विद 9 कंट्रीज विच आर सराउंडिंग इट. ठीक है, क्लियर है. सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर. इंडिया एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स विद नेबरिंग कंट्रीज ऑन द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन कौन आता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज आते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और इसमें से इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है, इकोनॉमिकली एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस. बाकी सारे कंट्रीज से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर है. ठीक है, ओके, हमारा दोस्त पाकिस्तान. ठीक है, सो इंडिया वाज पार्टीशनड विद इंडिया एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड 1947. तो पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दिस वाज जस्ट वन कंट्री. तो पार्टीशन के बाद भाई साहब सेपरेट हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश. ठीक है, और जब सेपरेट हुआ था तब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, तब बांग्लादेश क्रिएट नहीं हुआ था. बांग्लादेश को बांग्लादेश इंडिया ने बनाया है. ठीक है, ओके, खैर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियो पाक रिलेशंस, डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड व्यूज ऑफ बोथ द कंट्रीज. तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं. आप देखोगे अगर 2 लोग झगड़ रहे होंगे रास्ते में, हाँ इसने ना ये बोला, इसने ये दूसरे को बोला, इसने ना मेरे को ये बोला, तो अभी जो आजू बाजू हैं वो क्या कर रहे हैं? मजा ले रहे हैं, है ना. तो कुछ लोग भाई साहब पांडे को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई एक्चुअली सपोर्ट के लिए नहीं आया है, सब मजे लेने आए हैं. झगड़ा हो रहा है दोनों में, किसी मुद्दे पे हो रहा होगा. ठीक है, ये अपने लोगों को बटोरने की कोशिश कर रहा है, मैं अपने लोगों को बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है. सिर्फ एक है तो ठीक है, किसी को सपोर्ट कर देते हैं, किसी एक का साइड ले लेते हैं, लेकिन दैट इज हाउ इट गोस. ठीक है, तो जब इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंसेस हैं
तो इसको भी बाहर के कंट्रीज कुछ सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, कुछ इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कायदे के तरीके से देखा जाए तो सब मजा ले रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ पड़ा नहीं है इससे। इंडिया अपोज मिलिट्री अलायंसेस ऑफ द कोल्ड वॉर एंड ट्राइड टू सॉल्व इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट बायलैटरली। तो आपका भाई साहब जब कोल्ड वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर वाज बेसिकली फॉट बिटवीन टू मेजर नेशंस, दैट इज रशिया एंड अमेरिका। लेकिन ये सीधा सीधा वॉर नहीं था, ये बड़ा टैक्टफुल वॉर था। मतलब कैसा वॉर है कि कोई जंग नहीं छिड़ी हुई है, लेकिन तनाव बना हुआ है, और कुछ लोग हैं जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया दोनों को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, इंडिया वाज एक्चुअली नॉट सपोर्टिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो इंडिया अपोज मिलिट्री अलायंसेस ऑफ कोल्ड वॉर, तो इंडिया ने बोला कि नहीं, हम कोई मिलिट्री अलायंस, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अराइज हो रही थी, ठीक है। अगर रशिया आज नहीं टूटता था, अगर रशिया का विभाजन नहीं होता था, तो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया होता, ठीक है। कोल्ड वॉर जो है वो धीरे धीरे इस कदर आगे बढ़ रहा था, ठीक है। सो इंडिया ने भाई साहब बोला कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी ऑफ द कंट्री और द मिलिट्री कैंप्स, वी आर गोइंग टू स्टे न्यूट्रल एंड आउट ऑफ दिस, ठीक है। The Shimla, okay, Indo-Pak, and to try to solve Indo-Pak conflict bilaterally, ठीक है। The Shimla Agreement of 1972 was based on this principle. तो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1972 में, एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज कंसिडर्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि मतलब उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिसको अभी रिवोक किया गया था। एनीबडी नोज अबाउट दैट आर्टिकल 370, ठीक है। तो उसको भाई साहब रिवोक किया गया है, क्योंकि उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर कैन पैरेलली रन इट्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। वहाँ उनका एक खुद का फ्लैग हो सकता है, खुद का एंथम हो सकता है, और जम्मू एंड कश्मीर में आप कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, अपने नियम है उनके। जम्मू एंड कश्मीर की कोई लड़की अगर किसी बाहर के स्टेट के लड़के से शादी करती है, तो उसको अपने प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाएगा। यू आर नॉट ऑथराइज टू परचेज एनी प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। आप इंडिया के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं। ऐसे सारे नियम थे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, आज वो रिवोक हो चुका है, ठीक है। तो ये 1972 में ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ भाई साहब। पाकिस्तान ट्राइड टू मेंटेन रिलेशंस विद द इस्लामिक वर्ल्ड। तो इस्लामिक कंट्रीज बहुत सारी हैं, ठीक है, सऊदी कंट्रीज बहुत सारी है, तो इन्होंने अपना रिलेशनशिप वहाँ पे मेंटेन रखा, एंड चाइना, और चाइना के साथ भी, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ठीक है। एंड एंटर्ड इनटू अ मिलिट्री एग्रीमेंट विद अमेरिका। और उस टाइम पे क्योंकि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, ना ही अमेरिका को और ना ही रशिया को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया, ठीक है। रशिया की तरफ थोड़ा सा झुकाव इंडिया का था, ठीक है। इनफैक्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, ये एक्चुअली वेंट टू रशिया, और उन्हें पे उनकी डेथ हो गई ताशकंद में, ठीक है। तो खैर ये दूसरी अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान जो है तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, या इस्लामिक कंट्रीज के साथ हाथ मिला रहा है टू प्रोपोगेट अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। द कश्मीर क्वेश्चन, तो ये कश्मीर जो है एक बहुत ही मतलब संगीन मुद्दा बना हुआ है बहुत सालों से। कश्मीर इज समथिंग दैट द पाकिस्तानीज आर ट्राइंग टू बेसिकली कैप्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो कश्मीर क्वेश्चन, फर्स्ट इंडो पाक वॉर ओवर कश्मीर हैपेंड इन 1965। 1965 में पहली बार ये वॉर हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1966, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट एक साइन हुआ 1966 में दोनों कंट्रीज के बीच में। वॉर फॉर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये इंडिया है भाई साहब, जो आज की तारीख में आज को बांग्लादेश दिख रहा है, वो पहले भाई साहब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और ये आपका वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया ने भी थोड़ा चाल खेला और सही किया एक्चुअली। मतलब बांग्लादेश एक मतलब ईस्ट पाकिस्तान जो है इग्नोर्ड कंट्री थी, सारा कुछ तो यही चल रहा है। तो इंडिया ने एज अ फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश इमर्ज हो, इसके लिए बांग्लादेश की सहायता की, ठीक है। वहाँ पे एक फोर्स था जिसको मुक्ति बाहिनी फोर्स बोलते हैं, और इस फोर्स को इंडिया ने आर्म्स एम्युनिशन का सप्लाई किया, यस, ठीक है, आर्म्स और एम्युनिशन का सप्लाई किया, इसको स्ट्रॉन्गर बनाया, ठीक है। ओके, सो वॉर फॉर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हैपेंड इन 1971, also had the dimension of Kashmir problem to it. Shimla agreement provided a new format for interaction between India and Pakistan. तो शिमला एग्रीमेंट का साइनिंग हुआ भाई साहब, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर इन्फिल्ट्रेशन बाय पाकिस्तान इन द कारगिल रीजन। तो आप देखो बहुत सारे हुए,
पहला वॉर जो हुआ था 65 में हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ 1966 में। बांग्लादेश का क्रिएशन की वजह से एक वॉर हुआ 1971 में, एंड देन 72 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। एंड अगेन देयर वाज एन अटैक और इनफिल्ट्रेशन, इसको हम डायरेक्ट अटैक नहीं बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे, मतलब उग्रवादी लोग या आतंकवादी लोग कारगिल एरिया में घुसकर उसको कैप्चर करना। कारगिल मतलब हिमालयस में है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, और उसको भाई साहब उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसके अगेंस्ट में 1999 में एक वॉर लड़ा गया जिसमें इंडियन सोल्जर्स ने उसको रिकैप्चर किया, वापस रिकैप्चर किया, ठीक है। ओके, कश्मीर रिमेन्स कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। कश्मीर हमेशा से ही एक मुद्दा है फॉर अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। न्यूक्लियर राइवलरी बिटवीन द टू कंट्रीज, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, कभी हुआ था भाई साहब 1998 में, ठीक है। Conducted both in India and Pakistan. Border dispute in Sir Creek area. So there is a border dispute that is there in Sir Creek area. India China. Okay, border issues अगर आप देखोगे तो China claims that the area south of Aksai Chin and McMahon line, that is Arunachal Pradesh, is China territory. तो ये जो आपको दिख रहा है वैसा इतना एरिया, ठीक है, that is China is claiming that this is their territory. अरुणाचल प्रदेश भाई साहब उनका जो दिख रहा है वहां पे उनका, तो ये जो अक्साई चिन एंड मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश का, दे आर क्लेमिंग देम टू बी देयर टेरिटरी। इन 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया, ठीक है। स्टेटस ऑफ तिब्बत, अभी तिब्बत देखो एक बहुत पीसफुल कंट्री है। इस कंट्री में जो इनके लीडर्स हैं दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट लीडर्स, ठीक है। मतलब बुद्धिस्ट कैंपिंग से इनका ये होता है, कोई पॉलिटिकल डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और चाइना हर समय इस कंट्री पे एक आक्रोश बना रहा है, ठीक है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे दिल्ली में इनके जो लीडर हैं वो रहते हैं दलाई लामा, ठीक है। ही इज़ बेसिकली अ पर्सन फ्रॉम तिब्बत, ही वाज देयर लीडर, एंड बिकॉज ऑफ चाइना इन्वेजन ही हैड टू एस्केप एंड टेक रेफ्यूज टू इंडिया। इंडिया ने इनको पॉलिटिकल असाइलम दिया है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल असाइलम? असाइलम मतलब प्रोटेक्शन, ठीक है। एक कोई क्रिमिनल नहीं है वो वहाँ के लीडर हैं, और क्योंकि चाइना इनको अटैक करके तिब्बत को अपने कब्जे में करना चाहता था, इसीलिए इन्होंने बहुत बड़ा मतलब हिमालय क्रॉस करके ये इंडिया आए हैं। हिमालय रेंजेस जो है उसको क्रॉस करके इंडिया में आए हैं। सो दैट वाज अ ह्यूज थिंग दैट ही डिड, ठीक है, इज द वन, ठीक है। दलाई लामा बेसिकली इज दलाई लामा इज द वन हु इज बीन प्रोवाइडेड अ पॉलिटिकल असाइलम। ही इज उनके स्पिरिचुअल लीडर है, उनके पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, और फिर जब हम किसी उम्मीदवार को चुनते हैं वो हमारे को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होते, वहाँ पे रिलीजियस लीडर्स होते हैं, और दलाई लामा हैपेंस टू बी द रिलीजियस लीडर, ठीक है। बहुत ही पीसफुल कंट्री है, लेकिन और इंडिया के साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। इनके जो लीडर है वही इंडिया में रहते हैं। तो चाइना ने इसको बहुत बार उपद्रव मचाने की कोशिश की है, ठीक है। स्टेटस ऑफ तिब्बत, तिब्बत वॉज ट्रेडिशनली ऑटोनोमस। तो पहले तो भाई साहब ये ऑटोनोमस थी, मतलब अपना खुद ही देखते थे ये कंट्री, ठीक है। चाइना वाज स्टेपिंग अप इट्स मिलिट्री कंट्रोल इन तिब्बत। दलाई लामा टुक असाइलम इन इंडिया, ठीक है। ही हैज टेकन असाइलम इन इंडिया। असाइलम मतलब क्या होता है भाई साहब? शरण लेना, ठीक है। इंडिया के पास शरण लेना। इंडिया ने इनको वेलकम किया, हाँ आइए आप रह सकते हैं, हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, और वो हैं भी, न्यू दिल्ली में रहते हैं वो, ठीक है। ही हैज बीन ग्रांटेड दैट एंटायर आपका पूरा प्रोटेक्शन उनको दिया हुआ है। ही हैज टेकन असाइलम इन इंडिया, ठीक है। China was stepping, okay. Joint executive group has been set up to solve the Sino border dispute. लेकिन ये अभी threat to India security is increasing. ये इंडिया की सिक्योरिटी में थ्रेट बढ़ रहा है चाइना की वजह से, ठीक है। फ्रेंडशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो ये वैसा दोनों के दुश्मन, दोनों ने इंडिया को अपना दुश्मन बना रखा है, इसलिए दोनों में दोस्ती है। चाइना एंड पाकिस्तान में फ्रेंडशिप बढ़ रहा है। सप्लाई ऑफ वेपन्स फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सारा सप्लाई आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है पाकिस्तान को चाइना से मिल रहा है, ठीक है। मिश्रा जी का होगा सप्लीमेंट दे दो, मिश्रा जी को सप्लीमेंट दे दो। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर इंडियाज अदर नेबर्स। तो चाइना ने सिर्फ पाकिस्तान को ही इन्फ्लुएंस नहीं किया है, दूसरे नेबर्स को भी इन्फ्लुएंस किया है, मालदीव्स को भी इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, नेपाल को भी इन्फ्लुएंस किया है। चाइना इज इन्फ्लुएंसिंग एवरीबडी अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। और कैसे इन्फ्लुएंस करने का तरीका है कि ज्यादा पैसे देकर, ज्यादा वेपन्स देकर, ठीक है। ओके, चेंजेस इन इंडिया चाइना रिलेशन। अभी एक ही देखो, हर
तनावपूर्ण स्थिति को आज की तारीख में सुलझाने का एक ही तरीका है। क्योंकि देखो, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज भाई साहब खचाखच हैं। देखोगे, यूरोप को देखोगे, एक कंट्री दूसरा कंट्री ऐसा भाई साहब है, खिचड़ी बनी हुई है वहां पे कंट्रीज की। लेकिन वहां पे वॉर्स नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है, दो वॉर्स देखे उन्होंने, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, और इन दोनों वॉर्स में दे हैव सीन द मैसिव डिवेस्टेशन, दे हैव सीन द लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज ऑफ प्रॉपर्टी इन ह्यूज नंबर्स। ठीक है, तो ये इन्होंने देख लिया, इनकी एक सीख हो गई है, इसीलिए अभी ये शांतिपूर्ण है। दे आर स्टिल नॉट क्वारलिंग और हैविंग अ टसल बिटवीन ईच अदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, इसीलिए शायद हमको सीख नहीं मिली है। और दूसरा है कि भाई साहब, एक चीज से हम वॉर के कंडीशन को डिफ्यूज कर सकते हैं, एक तो डर से, और दूसरा है भाई साहब बिजनेस रिलेशनशिप से। हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स जितने बढ़ेंगे, ठीक है, उतना ही वॉर लाइक सिचुएशन डिफ्यूज होगा। क्योंकि बिजनेस रिलेशनशिप अगर बढ़ेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ेगा। द मोर इज द बिजनेस रिलेशनशिप, द मोर विल बी द डिपेंडेंसी। और अगर आप डिपेंडेंसी को बढ़ाते हैं, you cannot afford to go on war with that country. If India is dependent on China for certain products and services, and China is dependent on India for certain businesses, so it will increase the interdependency of these two countries and it will diffuse the war-like situation. आपका अगर कोई क्लाइंट होगा या आप किसी के कस्टमर होंगे तो वहाँ पे झगड़ा होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा, क्योंकि दोनों को दोनों से ही कुछ चाहिए, है ना। जो प्रोड्यूसर है उसको पैसा मिल रहा है, जो भाई साहब क्लाइंट या कस्टमर है उसको सर्विस मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों को दोस्तों से कुछ चाहिए, इसीलिए झगड़ा झांसा होने का पॉसिबिलिटी कम होगा। ऐसा ही भाई साहब हमारे कंट्रीज में भी होता है। ठीक है, अगर कंट्रीज में हम बिजनेस को इंक्रीज करें तो चाइना का, देखिए पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना तो लगभग असंभव है, उनकी खुद की इकोनॉमी डूबी हुई है, तो उनके यहाँ पे कोई ऐसा मेजर प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है जिसको हम अवेल कर सकें और हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकें। लेकिन चाइना के साथ हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बोथ कंट्रीज इंक्रीज एंड देयर ट्रेड रिलेशंस हैव स्ट्रेंथेंड। ये ट्रेड को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे साथ चाइना का जो रिलेशनशिप है, दैट कैन एक्चुअली, जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है वो डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, improved economic and trade relations and a series of tripartite talks between Russia, China and India, Sino-Indian relations are improving slowly। तो धीरे धीरे साइनो इंडियन रिलेशन जो है तो इम्प्रूव हो रहे हैं। रशिया भी इसमें इन्वॉल्व होकर इसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, द बॉर्डर डिस्प्यूट हैज टेकन अ बैक सीट एंड रिलेशंस इन अदर एरियाज हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट। तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट था चाइना को लेकर इंडिया का, वो अभी थोड़ा सा डिफ्यूज हुआ है, इट हैज डिफ्यूज्ड अ लिटिल। ठीक है, ओके। अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात पहले से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऑल्दो इट इज अ टेररिस्ट टॉर्न कंट्री बट वी हैव गुड रिलेशनशिप्स विद अफगानिस्तान। वी हैव नेवर हमारा उनके साथ कोई झगड़ा झांसा हुआ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे हाल ही में क्रिकेट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं विच शोज दैट अफगानिस्तान फेवर्स इंडिया। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो अफगानिस्तान के खुद के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे तालिबान का डोमिनेंस है। तो ये ओके, इंडिया एक्सटेंडेड हेल्प टू ब्रिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कर्ब वायलेंस एंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इंडिया का एक योगदान रहा है वहाँ पे पीस, स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की। इंडिया इज हेल्पिंग अफगानिस्तान इन द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केसेस में? रीस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वॉर। तो जो भी इनके कम्युनिकेशन फैसिलिटीज थे, सैटेलाइट्स थे, इनको फिर से इंडिया रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है ताकि वॉर लाइक सिचुएशन फिर से ना हो। ठीक है, बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, ठीक है, कोऑपरेट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सब चीजों में इंडिया इनको हेल्प एक्सटेंड कर रही है। हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सारे भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सो अफगानिस्तान के साथ अभी तक हमारा कोई मसला नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमने अफगानिस्तान को अभी तक सपोर्ट किया है उसके डेवलपमेंट में, उसके पीस के लिए, उसके इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, इस सब में हमने उसको सपोर्ट किया है। ठीक है, ओके। चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें एक वॉर हमारा हो चुका है और रशिया का भी इंटरवेंशन हुआ है टू सॉल्व द रिलेशनशिप्स। और देखा जाए तो अभी अगर बिजनेस बढ़ता है तो बिजनेस के बढ़ने से ही हमारे दोनों के जो आपसी तनाव है वो कम होंगे। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो अदर सोल्यूशन टू दिस। ओके, बांग्लादेश।
टुडेज बांग्लादेश इज फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान। तो यहां पे देखो, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, जब विभाजन हुआ, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान, दिस वाज इंडिया एंड दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान। तो आप सोचिए, एक कंट्री है, उसके बीच में एक और कंट्री है, और उस कंट्री का दूसरा हिस्सा यहाँ पे, क्या ये प्रॉपर्ली मैनेज हो पाएगा? जहां पे हम एक साथ रहते हैं वहीं पे ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी अ नेग्लेक्टेड पोर्शन, और ये बहुत सालों तक नेग्लेक्टेड ही रहा, ठीक है। और फिर इंडिया से इन्होंने हेल्प मांगा कि हमको कोई देखता ही नहीं, हमारे डेवलपमेंट के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, ठीक है। सो देन दे स्टार्टेड सीकिंग हेल्प फ्रॉम इंडिया, और इंडिया ने हेल्प किया, ठीक है। तो उस टाइम पे भाई साहब एक सेना हुआ करती थी इनकी, मुक्ति बाहिनी सेना, और उनको मतलब दे वेर अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वांटेड बांग्लादेश टू बिकम अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री एंड अ कंट्री ऑफ इट्स ओन, नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और इनको आर्म्स एंड एम्युनिशन हमने सप्लाई किए, ठीक है। सो इंडिया फेवर्ड, और यही खुन्नस अभी तक पाकिस्तानियों में है, ठीक है। पाकिस्तान बेसिकली इज हैविंग दैट कि ये कंट्री हमारे हाथ से निकल गया, ये कंट्री हमारे हाथ से निकल गया। हाँ, इंडिया ने इस पर कब्जा नहीं किया, इंडिया ने इसको जाने दिया। इंडिया मतलब बोलिए कि आप अपना कंट्री क्रिएट कीजिए, ठीक है। बांग्लादेश एज अ नेशन वाज फॉर्म, ठीक है। So today's Bangladesh is former East Pakistan. Pakistan had two parts. This was basically West Pakistan and this was East Pakistan. ठीक है? Linguistic difference and other political conflicts between them. भाई साहब, यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा और यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे ज्यादा करके उर्दू और यहाँ पे भाई साहब बांग्लादेशी भाषा बोला जाता है, ठीक है। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी थे, देयर वर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ठीक है। मूवमेंट टू लिबरेट बांग्लादेश इमर्ज, तो यहाँ पे एक मूवमेंट चालू हुआ, बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री का औहदा मिले, ठीक है। तो और इसको चलाया मुक्ति बाहिनी सेना ने, ठीक है। इस सेना को सपोर्ट किया इंडिया ने, ठीक है। ओके, सो इंडिया हेल्प बांग्लादेश इन इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। बांग्लादेश वाज फॉर्मड इन 1971, ठीक है। आज जो बांग्लादेश आपको दिखता है उसके क्रिएशन में इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और यही खार आज तक पाकिस्तान खार खाए बैठा हुआ है कि हमारे हाथ से एक कंट्री निकल गया, लेकिन निकलना ही था, आज नहीं तो कल उसको निकलना ही था। आप ऐसा कंट्री नहीं चला सकते कि आप इधर हैं और आपका दूसरा पार्ट इधर है और बीच में एक बड़ा कंट्री है, ठीक है। कैसे चलाएंगे आप? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। आप समझो यहाँ पे आपका सैटेलाइट कोई चीज कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इधर से गुजर के ही जाए ना भाई, इधर से गुजर के जाएगा तो हमको मिल ही जाएगा ना उसका इन्फॉर्मेशन। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू रन कंट्रीज लाइक दिस, ठीक है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश को सेपरेट होना ही था। हाँ, इंडिया ने हेल्प किया और इसी की वजह से पाकिस्तान मानती है कि इंडिया हैज अ रोल टू प्ले इन द क्रिएशन और सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ट्रीटीज वेर साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अबाउट शेयरिंग रिवर वाटर्स एंड सम रिगार्डिंग टू शेयर बॉर्डर। तो अभी देखो रिवर वाटर्स अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब गंगा भी है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, ठीक है। सो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, दैट वाज बेसिकली अ ट्रीटी दैट वाज साइंड कि रिवर वाटर्स दोनों हम ठीक से शेयर करेंगे ताकि दोनों को भी कमी ना हो, ठीक है। ओके, ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज आर ग्रोइंग। आज की तारीख में भाई साहब बांग्लादेश और इंडिया में काफी सारे ट्रेड रिलेशंस हैं हमारे। फिलहाल अभी तक तो ताल्लुकात बांग्लादेश से अच्छे ही रहे हैं, ठीक है। इट हैज नॉट बीन दैट बैड। श्रीलंका, ओके, इंडिया हैज फ्रेंडली रिलेशंस विद श्रीलंका। इनफैक्ट श्रीलंका में जैसे मैंने इनका एक चैप्टर था, इनका अभी है कि पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग किसका चैप्टर था? 10th वालों का कि 9th? तो आप लोग 10th में जाकर पढ़ोगे इस चैप्टर को। पावर शेयरिंग एक चैप्टर है जिसमें श्रीलंका में जो हुआ उसके बारे में बड़े विस्तारित रूप से हमको जानने को मिलता है। एक्चुअली श्रीलंका और बेल्जियम के कंट्री हैं दो, और इनके अंदर एथनिक वायलेंस का एक प्रोस्पेक्ट कैसे डील किया गया है उसको समझाया गया है। तो श्रीलंका में क्या था कि श्रीलंका में एक तमिल कम्युनिटी थी और एक सिन्हला कम्युनिटी थी। तो श्रीलंका में बेसिकली सिन्हला कम्युनिटी पहले से थी, मतलब पहले के श्रीलंका के लोग हैं ये, ठीक है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी ये। बुद्धिस्ट कम्युनिटी कैसी हुई? जब हमारे यहाँ पे अशोका राजा थे, जब उन्होंने बुद्धिस्ट को अपनाया, बुद्धिज्म को अपनाया, और उन्होंने अपने बेटे और बेटी को यहाँ पे भेजा प्रीच करने के लिए, और उस टाइम पे सिन्हला कम्युनिटी बेसिकली बनी। तो सिन्हला कम्युनिटी बहुत सालों से थी। अभी जब भारतवर्ष में ये ब्रिटिशर्स आए, देन व्हाट दे डिड वाज दे टुक अप प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड दे टुक देम टू श्रीलंका टू वर्क, ठीक है। अभी जब उनको लेकर गए, इतना बड़ा समुद्र पार करके भाई साहब वहां तक पहुंचे,
तो उनको जब लेकर गए तो दे स्टार्टेड देयर लाइव्स देयर ओनली, वहीं पे सेटल डाउन हो गए। तो अभी श्रीलंका में दो कम्युनिटीज हो गई, एक हो गई सिन्हाला कम्युनिटी और एक हो गई तमिलियन कम्युनिटी। ये तमिलियन कम्युनिटी इंडिया से आई थी और सिन्हाला कम्युनिटी पहले से थी, लेकिन उनका जो भी गवर्नमेंट बनता था वो हमेशा सिन्हाला कम्युनिटी का इंसान ही बनता था, वहां के लोग ही बनते थे। तो अभी क्या होने लगा, गवर्नमेंट जो है सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर करने लगी, उनके लिए जॉब्स मिलेंगे, उनको भाई साहब शिक्षा में सुविधाएं मिलेंगी, जितने भी फैसिलिटीज हैं उनको मिलेंगे। तमिलियन कम्युनिटी को कंप्लीटली इग्नोर करने लगी, ठीक है, जिसके वजह से दुनिया में सबसे बड़ा सिविल वॉर हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, LTTE, ठीक है। ये LTTE को कंट्रोल किया ही नहीं जा रहा था, मतलब इन्होंने कईयों प्रेसिडेंट को मार डाला था और मतलब खून की नदियां बह रही थी श्रीलंका में एक टाइम पे। मतलब श्रीलंका एक ऐसा जगह था जहां पे आप अगर रास्ते में ऐसे दौड़ रहे होंगे ना तो पुलिस गोली चला देगी आपके, मिलिट्री ऐसी रहती थी गोली चला देगी। आप दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, कुछ तो आप हरकत करने वाले हैं। मतलब इतना इट वाज सो वॉर ऑन एरिया, अंदर ही अंदर सिविल वॉर है। मतलब ये तमिलियन जो लोग थे, तमिल कम्युनिटी, ये गुरिल्ला वॉरफेयर करती थी। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब ये जंगलों में रहती थी और बॉम्ब ब्लास्ट करना, ठीक है, प्रेसिडेंट को उड़ा देना, कईयों प्रेसिडेंट को इन्होंने मारा है, खून की नदियां बह रही थी। अगर आप कभी एक मूवी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, मद्रास कैफे बोल के एक मूवी हुई है, जॉन अब्राहम की मूवी है, उसमें उस टाइम का जो सिनेरियो था श्रीलंका को, उसको थोड़ा सा दर्शाया गया, ठीक है। तो अभी इसको इस चीज को डिफ्यूज करने में भी इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ था। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, इन्होंने बहुत सारे ट्रूप्स भेजे श्रीलंका में, मिलिट्री असिस्टेंस दिया इन ऑर्डर टू कर्ब दिस, और शायद इसी वजह से उनको उनकी जान गई, ठीक है। व्हेन राजीव गांधी वाज नॉट इन पावर, ठीक है, ही वाज एक्चुअली इन श्री पेरुम्बदूर समवेयर डाउन साउथ इन इंडिया एंड ही वाज बेसिकली कैनवसिंग फॉर हिज कांग्रेस पार्टी, और यहाँ के ही श्रीलंका के ही LTT के कुछ लोगों ने उनको बॉम्ब से उड़ा दिया। जिस मंच पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उनकी जान गई, प्लस और 25 लोगों की जान गई थी, ठीक है। सो दैट्स हाउ ही वाज एक्चुअली किल्ड, दे टुक द रिवेंज, बिकॉज इन्होंने हेल्प किया था श्रीलंका को एक टाइम पे, तो श्रीलंका के LTT के लोगों ने ये बदला लिया। खैर, मुद्दा ये है कि इंडिया के साथ श्रीलंका में आज की तारीख में जो पीसफुल एनवायरनमेंट है उसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया ने इस LTT को डिफ्यूज़ किया है। इस LTT के जो बहुत बड़ा एक सिविल वॉर चल रहा था, इसको ख़त्म किया है। तो श्रीलंका के साथ फिलहाल ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन श्रीलंका में खुद का जो इम्बैलेंस है वो ज़्यादा है। आज की तारीख में श्रीलंका का जो इकोनॉमी है वो पूरा क्रैश हो चुका है, इट हैज़ कम्प्लीटली क्रैश्ड, ठीक है। सो अलग अलग रीजन है, बट इट हैज़ फ्रेंडली रिलेशन विद श्रीलंका फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जा रही है, दिस इज बेसिकली द वॉर बिटवीन तमिलियंस एंड सिन्हाला कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ विच LTT वाज फॉर्म। और LTT आज की तारीख में सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था एक टाइम पे, ठीक है, अभी तो नहीं है। 1985 ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन तमिल्स एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया हैड सेंट अ पीस कीपिंग फोर्स, तो इंडिया ने अपना एक पीस कीपिंग फोर्स भेजा था, ठीक है, टू हेल्प द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और इसी की वजह से राजीव गांधी की जान गई। जब वो पावर में नहीं थे, ही वाज बेसिकली कैनवसिंग फॉर हिज कांग्रेस पार्टी फॉर द इलेक्शंस व्हिच वर अबाउट टू हैपन एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। दिस बॉम्ब ब्लास्ट वाज एक्चुअली डन बाय प्रभाकरन वाज द सीनियर लीडर ऑफ LTT, ठीक है। ओके, फ्रेंडली रिलेशंस इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन। तो भाई साहब, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के लिए फ्रेंडली रिलेशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी कंट्री को अटैक करना रहेगा, इधर से ही घुसेगा भाई साहब और तांडव मचाएगा, है ना। हमारे वैसे भी अटैक हो चुके हैं, सी रूट से आए थे जो लोग आए थे भाई साहब मुंबई में अटैक करने। ओके, नेपाल के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, अभी थोड़े से बिगड़ गए हैं। नेपाल इज लैंडलॉर्ड कंट्री सराउंडेड बाय माउंटेनियस टेरेन, ठीक है। देयर बाउंड्रीज आर लिंक्ड विद इंडिया एंड चाइना। Indo-Nepalese Friendship Treaty was signed in 1950, ठीक है। नेपाली citizens can enter India, take up government jobs and carry out trade in India. तो नेपाली people can come to India, they can take up jobs, they can even take up government jobs and settle down in India, ठीक है। तो ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है। 1990 marked the beginning of Nepal's transition to democracy. पहले यहाँ पे किंग्स रूल था,
अभी भाई साहब डेमोक्रेसी हो गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खानदानी झगड़ों में एक बार एक राइफल उठा के इनके ही किसी अंकल ने पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया था। नेपाल के जो किंग थे और उनके जो वाइफ, उनके बच्चे, सबको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। सो बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था ये, खैर वो उनका फैमिली मैटर था, लेकिन दैट्स हाउ इन 1990 ट्रांजिशन हैपेंड टू डेमोक्रेसी। पहले मोनार्कियल रूल था एंड देन इट चेंज टू डेमोक्रेसी। नेपाल रिक्वायर्स हेल्प फ्रॉम इंडिया फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बेसिक फैसिलिटीज, फूड रिलेटेड नीड्स, ट्रेड एंड एनर्जी नीड्स। तो ये सारी चीजें इंडिया इनको देता है, मदद करता है, ठीक है। इंडिया हेल्प नेपाल एट द टाइम ऑफ 2015 अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक एक हुआ था 2015 में एंड मैसिव अर्थक्वेक था, इसमें बहुत सारा लॉस ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ था एंड इंडिया आउटस्टैंडिंगली हेल्प नेपाल ऑन दिस। भूटान एक छोटा सा कंट्री है, इनफैक्ट सारे कंट्रीज में आज की तारीख में ये इकलौता कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्बन नेगेटिव? कार्बन नेगेटिव मींस दैट यहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स 0 से भी नीचे हैं, ठीक है। दैट्स हाउ दे हैव मेंटेन्ड इट। सो दिस इज द कार्बन नेगेटिव कंट्री और बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एक बिजनेस आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप अगर भूटान में बहुत सारे लोग जाते हैं, है तो बहुत ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन जाते दिखेंगे आपको। यहाँ पे गोल्ड बहुत सस्ते में मिलता है और गोल्ड को आप जब इंडिया में लाते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। सो इसकी वजह से लोग जाते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, आज की तारीख में ये एक बड़ा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे सस्ते से गोल्ड लाना और इंडिया में एंटर करना, उसको बेचना, ठीक है। सो ये हो रहा है, शायद आगे चलकर रोक टोक लग जाए इस पर, लेकिन अभी फिलहाल ये हो रहा है, ठीक है। इट इज़ हैपनिंग एट, क्योंकि यहाँ पे भूटान गवर्नमेंट ने, क्योंकि भूटान से इंडिया मतलब आपको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती नहीं है भूटान जाने के लिए, ठीक है। यू कैन विजिट द कंट्री एज इफ इट इज़ योर पार्ट ऑफ योर ओन कंट्री, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे लोग भाई साहब बहुत भारी मात्रा में जो लोग बिजनेस करते हैं गोल्ड लाते हैं, बहुत सस्ते में गोल्ड बिकता है यहाँ पे। ओके, भूटान इज ऑल्सो लैंडलॉक कंट्री सराउंडेड बाई माउंटेनियस टेरेन। इंडिया बेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस ऑफ भूटान। तो भूटान को डिफेंड करने की जिम्मेदारी इंडिया की है। कल को कोई भी अटैक हुआ इनको ऊपर या कुछ भी हुआ, इंडियाज मिलिट्री फोर्सेस विल फाइट फॉर भूटान। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। भूटान हैज अ ह्यूज सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। इंडिया कोऑपरेटेड इन द प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस हाइडल पावर ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग दिस सोर्स। तो हाइडल पावर प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिसिटी और इसके वजह से भूटान को बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। म्यांमार, इंडियाज डोर टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाने के लिए म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार इज अगेन अ बुद्धिस्ट कंट्री, ठीक है। साउथ एशिया, मिडिल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया will be connected with each other with the rail and roadways being developed in this area। एक बहुत बड़ा roadways और railways develop almost हो चुका है and that's how India will be connected to these South East Asian countries, ठीक है। कितने ग्राफ चाहिए? जो सवाल दिए पहले इसको कर। This will help increase trade and other exchange in this region। तो इससे भाई साहब trade and other exchanges will also increase। इंडिया विल बी एबल टू इंपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम म्यांमार। तो म्यांमार से नेचुरल गैस का इंपोर्ट भी हो सकता है। ओके, मालदीव्स को भाई साहब हम छोड़ देते हैं, कल इसको पकड़ेंगे, ठीक है। इंडिया एंड अदर कंट्रीज में हम डील करते हैं कि कैसे इंडिया बहुत सारे कंट्रीज से सराउंडेड है और कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे कंट्रीज से एक रिलेशनशिप मेंटेन करना। अगर ये रिलेशनशिप इंडिया नहीं मेंटेन करता है, दुश्मनी बढ़ती है, तो प्रॉब्लम्स इंडिया को ही होंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि आपके इमीडिएट नेबर से आप दुश्मनी नहीं मोल सकते, है ना। आप समझ लो घर पे रहते हैं और आपके बाजू वाले से आपकी अगर दुश्मनी है तो आते जाते खटकती रहेंगी चीज़ें, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप घर से नहीं निकलेंगे और वो घर से नहीं निकलेगा। तो अगर दुश्मनी रहेगी आपके पड़ोसियों से, सो तकलीफ उनके लिए भी है और आपके लिए, ठीक है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर को समझें। जैसे नेपाल के साथ हमारा ऐसा रिलेशनशिप है कि नेपाल से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, गवर्नमेंट के जॉब्स कर सकते हैं, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इतना हमारा आदान प्रदान है। भूटान के साथ हमारा रिलेशनशिप में हमने क्या देखा कि भूटान को डिफेंड करने की जिम्मेदारी इंडिया की है। इंडिया हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री असिस्टेंस टू भूटान इफ रिक्वायर्ड टू डिफेंड इट, ठीक है। बाकी हमने देखा श्रीलंका के साथ भी ताल्लुकात हमारे ख़राब नहीं है। इनफैक्ट हमने श्रीलंका की मदद की थी जब श्रीलंका में सबसे बड़ा सिविल वॉर चल रहा था।
सो दीज आर थिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। लेकिन चाइना से हमारे रिलेशनशिप्स खट्टे हो चुके हैं, पाकिस्तान से तो हमारा हमेशा ही एक स्ट्रगल रहा ही है। देन वी हैव अफगानिस्तान से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है फिलहाल, ठीक है। बट पाकिस्तान, चाइना एंड रिसेंटली मालदीव्स हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द राइवल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। द कंट्रीज दैट हैव टेंस रिलेशनशिप्स विद इंडिया: Pakistan and China, Myanmar and Maldives, Nepal and Bhutan, Afghanistan and America. So which one of these will be Pakistan and China? ठीक है। आज की तारीख में Maldives होता जा रहा है, म्यांमार नहीं है फिलहाल, ठीक है, बट Maldives is emerging out। मतलब Maldives हम पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन Maldives जो है हमारे लिए अब दोस्त नहीं रहा, ठीक है। ओके, factors that have an influence on the relations between India and Pakistan: difference in the worldview of both the countries, कश्मीर इशू, न्यूक्लियर राइवलरी, ऑल ऑफ द अबव। क्या न्यूक्लियर राइवलरी नहीं होगी? मैंने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाए, तुमने भी बढ़ाए, तो अभी क्या हो रहा है? दोनों में टेंशन डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो डिफरेंस इन द वर्ल्ड व्यू, जो वर्ल्ड है वो दोनों कंट्रीज को अलग तरीके से देखता है, ठीक है। सो यस, इट विल बी ऑल ऑफ द अबव। Choose the correct option from the given options and complete the statements. Friendly relations with Sri Lanka are important from the point of view of the security in which ocean? इंडियन ओशन, ठीक है। वहां से भाई साहब बहुत सारे टेररिस्ट लोग आ सकते हैं, बहुत सारा अटैक हो सकता है। तो श्रीलंका के साथ अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे तो इंडिया पे सी वे से किसी अटैक का इंफॉर्मेशन हमको पहले ही मिल जाएगा, एंड वी कैन बी अलर्टेड ऑफ एनी सिचुएशंस, ठीक है। सो दिस विल बी इंडियन ओशन। द कंट्री दैट हैज फ्री इंटरनल बॉर्डर विद इंडिया: पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। फ्री इंटरनेशनल बॉर्डर, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब? नेपाल, ठीक है, इट विल बी नेपाल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? वैसा फ्री इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब यहाँ से लोग आवन जावन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डैश इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन established by South Asian countries in 1985. UN, SAARC, World Bank, UNICEF. So it is SAARC, Southeast Asian Association of Regional Countries. Sorry. India has an important position among the South Asian countries. So it is true. India is the biggest country in the Indian subcontinent. तो सबसे बड़ा कंट्री है। India is economically and technologically more advanced than these neighboring countries. ठीक है? Also, the values of equality and mutual respect have a great importance in India's foreign policy. Based on these values, India has established relationship with the neighboring Asian countries. तो इंडिया की भाई साहब रिलेशनशिप है दूसरे कंट्रीज के साथ, ठीक है। सो ये सारे तमाम चीजें। चाइना इंडिया रिलेशंस आर फ्रेंडली। चाइना मतलब इंडिया के साथ चाइना का। सो नो, इट इज नॉट, ठीक है। रीजन, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर द बॉर्डर इशू एंड द स्टेटस ऑफ तिब्बत। तिब्बत चाइना मानता है कि वो उसका है, ठीक है। इनफैक्ट चाइना को हर चीज अपनी लगती है, तो तिब्बत पे भी वो अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया इस चीज को अपोज करता है। तिब्बत के जो रिलीजियस लीडर हैं, मतलब तिब्बत में कैसा है, हमारा जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं जो इलेक्टेड फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट का, वैसा तिब्बत में नहीं है। वहाँ पे बुद्धिस्ट रूल है, तो वहाँ के जो बुद्धिस्ट में से जो प्रमुख होंगे वही लीडर होंगे। और फिलहाल दलाई लामा इज देयर लीडर, एंड दलाई लामा was threatened by Chinese. He was about to lose his life. If he would have stayed there, तो हो सकता था उन पे बड़ा अटैक होता था। तो इसीलिए दलाई लामा हैज सीक असाइलम इन इंडिया। इन्होंने भाई साहब असाइलम सीख किया है और फिलहाल ये इंडिया में रह रहे हैं। ही इज बेसिकली स्टेइंग इन इंडिया। तो दलाई लामा हैज बीन प्रोवाइडेड असाइलम बाय इंडिया। इंडिया ने असाइलम प्रोवाइड किया दलाई लामा को, ठीक है। ओके, चाइना सप्लाइड वेपन्स। तो आपके भाई साहब यहाँ पे इंडियाज एफर्ट्स टू सॉर्ट दिस डिस्प्यूट। चाइना डज नॉट एग्री विद द मैकमोहन लाइन is an international border and claims that the area to the south of Aksai Chin and McMahon line, Arunachal Pradesh, belongs to it. Okay? India's efforts to sort this dispute through dialogue have failed and resulted in China attacking India in 1962. तो आपका भाई साहब चाइना का अटैक हुआ था 1962 में। Also, as China was increasing its military control in Tibet, which was traditionally autonomous, Dalai Lama took asylum in India. So Dalai Lama basically has taken asylum in India. ही इज स्टेइंग इन दिल्ली, ठीक है। वो है तो वैसे तिब्बत के लीडर, लेकिन क्योंकि उनकी जान को वहाँ पे खतरा है तो इंडिया ने इनको पॉलिटिकल असाइलम दिया हुआ है। असाइलम मतलब समझ में आता है शरण, ठीक है, शरण देना, मतलब इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंडिया ने ली हुई है, ठीक है। तो पॉलिटिकल असाइलम दिया हुआ है।
दिस क्रिएटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि तिब्बत के जो लीडर हैं उन्हीं को हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया हुआ है और तिब्बत पे चाइना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए चाइना के साथ हमारे रिलेशंस और कटे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। चाइना सप्लाइड वेपन्स एंड ट्रांसफर्ड मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान विच हैज थ्रेटन्ड इंडिया सिक्योरिटी। तो चाइना अभी कोशिश कर रही है कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उन सबको इंडिया के अगेंस्ट खड़ा किया जाए। ठीक है, और उसमें पाकिस्तान एक आता है, दूसरा मालदीव्स आता है। मालदीव्स ने अपने रंग इसलिए बदले हैं क्योंकि उधर चाइना से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, नेपाल ने भी रिसेंटली अपने तेवर इसलिए बदले हैं क्योंकि चाइना से सपोर्ट मिल रहा है। सो चाइना इज ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर इन विच ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया बिकम इट्स एनिमीज। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, इंडो अफगानिस्तान रिलेशंस, इंडिया के साथ अफगानिस्तान के रिलेशंस सही हैं अभी तक तो फिलहाल। ठीक है, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज अनस्टेबल ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान। तो तालिबान का वैसा वहां पे दबदबा है और इसीलिए मतलब वहां पे अनस्टेबल है सिचुएशन। ठीक है, अफगानिस्तान की खुद की सिचुएशन अनस्टेबल है, हालांकि अफगानिस्तान का इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दिस पॉलिटिकल सिचुएशन, India has extended help in establishing a democratic government in Afghanistan to bring peace, security, stability and curb violence. तो इंडिया ने मदद की है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए आर्मीज भेजे हैं, मतलब और भी बहुत सारी सुख सुविधाओं को, मेडिसिन वगैरह भेजे हैं। इन सारे सुख सुविधाओं को भेजकर वहाँ पे पीस स्टैब्लिश करने की एक कोशिश की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया, तुम कहाँ टुकुर टुकुर देख रहे हो उधर तब से? कौन चीटिंग कर रहा है? नहीं, तो तुम कर रहे हो? नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग अफगानिस्तान इन रीस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वॉर एंड इन बिल्डिंग रोड्स। तो आपके भाई साहब, अफगानिस्तान एक वॉर टॉर्न कंट्री है, बहुत सारे वॉर्स हुए वहाँ पे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे। तो ये वॉर टॉर्न कंट्री है, तो वॉर के वजह से जो नुकसान उस एक कंट्री को हुआ है, इंडिया उसकी भरपाई कर रहा है। वहाँ पे रोड्स बना रहे हैं, वहाँ पे सुख सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद अफगानिस्तान इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन बिल्डिंग स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया अफगानिस्तान को रीस्टैब्लिश करने में मदद कर रहा है, इसीलिए अभी तक इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं। ठीक है, इंडिया के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। कुछ एक इंसिडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले, जब अफगानिस्तान ने क्रिकेट फील्ड में इंडिया को मतलब इंडिया का फ्लैग लहराया था। ठीक है, ये घटना घटी थी कुछ दिनों पहले। इसके लिए बड़ा विवाद हुआ कि एक दूसरी कंट्री को क्यों ऐसे, और आईसीसी इंडिया के ऊपर फाइन लगाने वाली थी। इंडिया ने बोला ये हमारा लुकआउट नहीं है। अगर मैं किसी देश का खिलाड़ी हूँ और मेरे देश के लोग अगर किसी और देश के झंडे को मतलब उत्साहित पूर्ण उसको वो कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है। कोई भी देश किसी दूसरे देश को प्रोत्साहन दे सकता है, इसमें गलत क्या है? ठीक है, तो अफगानिस्तान का ऐसे इंडिया का झंडा लहराना या इंडिया की तरफ सपोर्ट दिखाना, ठीक है, एक हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव साइन था कि हमारे साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन दूसरे लोगों को ये थोड़ा सा खटक रहा था, ठीक है, कि नहीं यार ये क्या कर, मतलब आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आप अपने कंट्री के झंडे को लहराइए, आप अपने कंट्री को सपोर्ट कीजिए, दूसरे कंट्री को अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है? तो ये एक विवाद खड़ा हुआ था कुछ दिनों पहले। बट एक पूरी टीम अफगानिस्तान की जो इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रही थी या इंडिया के झंडे को लहरा रही थी, इट एक्चुअली गिव्स एन इम्प्रेशन दैट आवर रिलेशनशिप्स विद अफगानिस्तान आर सो फार गुड। ठीक है, ओके, क्योंकि अफगानिस्तान को इंडिया रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान भले ही ज़्यादा करके रेगिस्तान से भरा हुआ है, वहाँ पे इरिगेशन नहीं होता है, लेकिन अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट प्रोवाइड करता है यूरोप जाने के लिए। दैट इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंड रूट प्रोवाइड करता है, वहाँ से चीज़ें आना और जाना बहुत आसान होता है। ठीक है, सो दैट इज़ वन रीज़न वाई इंडिया हैज़ गुड रिलेशनशिप्स विद अफगानिस्तान। ओके, complete the activity as per given instructions. Okay, India Pak treaties and exchange import। तो इंडिया पाक में भाई साहब द ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था 1962 में इंडिया के साथ, 65 में भाई साहब इंडिया के साथ वॉर हुआ पाकिस्तान का। ठीक है, इंडिया के साथ पाकिस्तान के 3 वॉर्स हुए हैं, तो ये पहला वॉर था जिसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था।
ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और एक और एग्रीमेंट साइन हुआ 1971 के वॉर के बाद, जिसको अपन शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। अगेन दीज आर एग्रीमेंट्स दैट वेर साइन कि भाई ये तुम्हारी ट्रीटी है, ये हमारा ट्रीटी है, ये लाइन है, इसके इधर तुम नहीं आओगे, इसके इधर हम नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसी होती है ट्रीटी, ऐसी होती है भाई साहब एक एग्रीमेंट कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेट्स बी एट पीस विथ ईच अदर, लेट्स मैनेज ईच अदर कंट्रीज वेल विदाउट इंटरफेयरिंग इन द अदर कंट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया म्यांमार, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, इंडिया मालदीव्स, अभी ये खत्म हो गया है, ठीक है। नाउ वी हैव disconnected with Maldives because they are rising against India, ठीक है। Okay, what kind of relations India established with Bhutan? तो भूटान के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और भूटान जाने के लिए कोई पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, भूटान में ज़्यादा करके इंडियंस जो हैं, सॉरी, भूटान की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है दैट इज़ विद इंडिया, ठीक है। इंडिया हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंडिंग भूटान। तो मोर और लेस भूटान इंडिया का ही एक पार्ट की तरह है, ठीक है। भूटान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री टू द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, शेयरिंग अ बॉर्डर विद इंडिया। इंडिया बेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ भूटान डिफेंस। तो भूटान का पूरा डिफेंस का उत्तरदायित्व, ये जिम्मेदारी इंडिया की है, ठीक है। इंडिया हैज प्रोवाइडेड कोऑपरेशन टू भूटान इन इट्स प्रोजेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइडल पावर ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग भूटान सोर्स ऑफ वाटर। भूटान में सोर्स ऑफ वाटर बहुत अच्छा है और भूटान से होता हुआ वाटर जो है तो इंडिया में भी एंटर करता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से हाइडल पावर प्लांट को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया है भूटान में, ठीक है, चले। और इसको करने में इंडिया ने बहुत अच्छा मदद किया है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि और भूटान आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कंट्रीज में से एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कार्बन नेगेटिव का एनवायरनमेंट है, मतलब वहाँ पे स्टिल पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स नहीं हुए हैं। इट इज़ अ कार्बन नेगेटिव कंट्री, ठीक है। और भूटान के पूरे आर्थिक व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स विद भूटान। ओके, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एफर्ट्स टेकन बाय इंडिया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन नेबरिंग कंट्रीज विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई है। द पॉलिटिकल सिचुएशन इन अफगानिस्तान, ठीक है, is unstable due to dominance of the terrorist organization तालिबान। एक पेन तो संभलता नहीं है, सेल्फ स्टडी हो रही है भाई साहब 2 दिन से। पॉलिटिकल सिचुएशन भाई साहब अफगानिस्तान में काफी ज्यादा खराब था और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काफी ज्यादा डोमिनेंस था। आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, प्लस ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होते हैं। सो दीज आर सिचुएशंस। India has extended help in establishing a democratic government in Afghanistan with a view to bring peace, security, stability and curb violence, ठीक है। इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए इंडिया ने अपना एक्सटेंडेड सपोर्ट अफगानिस्तान को दिया हुआ है। इंडिया हैज ऑल्सो हेल्प बांग्लादेश इन इट्स फ्रीडम स्ट्रगल विच रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो आपको मालूम था कि भाई साहब पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इग्नोर्ड था, एक जैसे एक प्रांत में पड़ा हुआ है, तो इंडिया ने बांग्लादेश को मदद किया या ईस्ट पाकिस्तान को मदद किया इन ऑर्डर टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। और इसमें इंडिया का एक बहुत खास योगदान था। 1971 व्हेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अरोज इन श्रीलंका आफ्टर 1985, तो श्रीलंका के उधर LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। इनफैक्ट आज तक जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं उसमें ये सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के मौत का कारण भी यही ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। ये एक्चुअली गॉन टू किसी संबोधन कर रहे थे किसी किसी क्राउड को, और ये श्री पेरुम्बदूर में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 25 से 30 लोग मारे गए थे इंक्लूडिंग हिम, ठीक है। और ये बॉम्ब ब्लास्ट कराया था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम LTTE ने, ठीक है। और ये एक श्रीलंका का बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप था। आप आगे चल के पढ़ेंगे इनके, इनफैक्ट CBSE वालों को क्लास 10th में इस पे एक चैप्टर है जिसको पावर शेयरिंग बोलते हैं। और पावर शेयरिंग में हम पढ़ते हैं कि कैसे बेल्जियम एक नेशन है और कैसे श्रीलंका एक नेशन है। यहाँ पे दोनों एथनिक ग्रुप्स हैं। बेल्जियम में भी 3 तरीके के एथनिक ग्रुप्स थे और श्रीलंका में 2 तरीके के एथनिक ग्रुप्स थे।
एक था भाई साहब तमिलियन और एक था आपका ओरिजिनल सिन्हला ग्रुप। उनमें तमिलियंस को सपोर्ट नहीं मिला, जिसके वजह से तमिलियंस लोगों ने सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कम से कम 10 से 12 प्रेसिडेंट्स की हत्याएं की होंगी श्रीलंका में, प्लस जो बॉम्ब ब्लास्ट होता था, ठीक है। सो श्रीलंका में एक बहुत ही अफला तफली वाला एनवायरनमेंट था। कभी टाइम मिले तो एक मूवी सर्च करना, मैड्रास कैफे बोल के, ये जॉन अब्राहम की मूवी है बेसिकली, बहुत पहले प्रकार रिलीज हुई थी, और इसमें उस सिचुएशन को रिलेट किया गया है, इंडिया और श्रीलंका, कैसे इंडिया ने श्रीलंका को मदद करने की कोशिश की थी और की भी थी, ठीक है। वहाँ पे पीस स्टैब्लिश करने में, श्रीलंका में पीस को लाने में इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान था। आए दिन वहाँ पे खून खराबा होता था, आए दिन लोग मारे जाते थे, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी, और उसको पूरा रीस्टेब्लिश करने में इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। इन दिस वे, when political instability arose in Sri Lanka after 1985, India had sent a peacekeeping force, ठीक है, to help the Sri Lankan government. In this way, India took efforts for the establishment of democracy in the neighboring countries. Okay, एक मिनट भाई साहब। Okay, so SAARC is a regional organization established by the South Asian countries in 1985. The aim of this organization is to encourage economic cooperation between South Asian nations and thereby achieve the development of South Asian region. तो काफी सारे कंट्रीज हैं, और ये सारे कंट्रीज जो है तो मतलब डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो अगर इनके दरमियान कॉपरेशन बढ़ता है in terms of information technology and other things, then obviously it will add to the development of all, ठीक है। So that is one reason. India and West Asia, India depends upon the oil coming in from West Asia. तो काफी बड़ी डिपेंडेंसी है जो ऑयल आ रहा है वेस्ट एशिया से, उस पे। इंडिया has traditionally had relationships with these countries. India imports mineral oil from Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and United UAE, ठीक है। इन सब जगहों से ऑयल आता है। आपकी गाड़ियां इसी पे चल रही हैं भाई साहब, फिलहाल तो इलेक्ट्रिक कार्स नहीं, बट ऑल दीज व्हीकल्स, मतलब टू व्हीलर से लेकर भाई साहब बड़े बड़े ट्रक्स तक, सब के सब इन कंट्रीज से आए हुए ऑयल पे चल रही हैं, ठीक है। इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, दीज आर द कंट्रीज व्हिच सप्लाई ऑयल टू अस, ठीक है। वी गेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर एंड डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इजराइल, ठीक है। एग्रीकल्चर और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हमको इजराइल से चीजें मिलती हैं। मेनी इंडियंस लिव इन इजराइल फॉर देयर जॉब्स और बिजनेसेस एंड कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग भाई साहब रहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। इन 2005 द डैश सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वाज साइंड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, ठीक है। कौन सा था भाई साहब आपका? जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर इज बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, he was the president of America and Dr. Manmohan Singh was the prime minister of India. So obviously किसके किसके बीच में हो जाएगा भाई साहब? इंडिया एंड यूएस, ठीक है। In 1971 India signed a treaty of friendship with Soviet Russia, America, China और England. The West Asian countries make a major contribution to India's economy. तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा? 2. The West Asian countries are mainly suppliers of oil and natural gas. India depends upon the West Asian countries like Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and United Arab Emirates for its oil requirements. Also, India gets modern technology for agriculture and defense equipment from Israel. Israel से काफी बड़ी मात्रा में defense equipment मिलते हैं. Apart from this, many Indians reside in Israel for jobs or business purposes. Thus, the West Asian countries make a major contribution to India's economy. Relationships between India and European nations, cooperative relationships हैं basically India और Europe में, which are very important from the point of view of India's development. Free trade is the firm objective of both the sides, ठीक है। European nations, Germany and France have made large-scale investments in the field of technology in India. India also gets technology for the production of weapons from European nations. On the other hand, India is a major exporter in the fields of engineering and information technology. India and European nations have signed treaties in the areas कहाँ पे वैसा climate change, clean energy, defense production, disaster management, security of airspace and terrorism. So these are the areas in which they have signed. India and America, ठीक है, civil nuclear agreement sign हुआ था 2005 में, जब अमेरिका थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया इंडिया के न्यूक्लियर टेस्टिंग कैपेसिटी पे, तब इंडिया और अमेरिका में ये ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है।
The summit conference of India and Africa, support to Africa in the field of technology, agriculture, tourism, etc., along with economic help and grants. What is the role of South Asian Association for Regional Cooperation? तो सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्या था भाई साहब 1985 में, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिटवीन साउथ एशियन नेशंस फॉर डेवलपमेंट, सार्क प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर साउथ एशियन कंट्रीज टू कम टुगेदर एंड डिस्कस देयर कॉमन इश्यूज। ये कुछ भी हो सकता है भाई साहब, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये ज्यादा करके गरीब कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या उतने ज्यादा डेवलपिंग मोड में अभी तक नहीं आई, ठीक है। सम ट्रीटीज वे साइंड ऑन द सार्क प्लेटफॉर्म टू सिंप्लीफाई ट्रेड बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज। अकॉर्डिंगली इट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक साउथ एशिया अ फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया मतलब बिंदास ट्रेड कर सकें, ठीक है। अ ट्रीटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड वाज साइंड एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। Cooperative relations between India and America. America has always been India's most important trading partner. Indians who have traveled to America for education or work-related purpose has strengthened the cultural, economic relations between the two countries. और क्या है साहब, India's adoption of the free market economy has further strengthened the trade relations between India and America. At the end of the Cold War, Cold War किसके किसके बीच में हुआ था? रशिया और अमेरिका के बीच में। There has been a large-scale increase in the military relations between India and America. However, after India conducted nuclear tests in 1998, tensions arose in the relations of these two countries. After discussions of the Indo-America Civil Nuclear Agreement was signed in 2005 between the two nations, which convinced America that India will use its nuclear weapons responsibly. एक गधे की तरह मैं पढ़े जा रहा हूँ और आपके लिए एंटरटेनमेंट सेशन है, कुछ नहीं होने वाला, मुझे मालूम है। वही बुक्स बंद रहेंगी, वही 10-12 मार्क्स में आप क्लोज कर दोगे। The agreement was approved by the US Congress in 2008 and is considered to be an important landmark in Indo-American relations. How did India-Soviet relations change over time? Today's Russia is erstwhile Soviet Russia. पहले का जो सोवियत रशिया होता था वो टूट चुका है और आज की तारीख में ये रशिया हो चुका है। Indo-Soviet relations had always been friendly. 1971 में Indo-Soviet Treaty of Friendship and Cooperation was signed, which tremendously increased the cooperation in the fields of defense and technology. The Soviet Russia has also given large-scale economic and military help to India. काफी बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प मिला है, but later the Soviet Russia collapsed और रशिया क्रिएट हुआ। India tried to establish relationships with Russia, but India's efforts did not bear fruits due to political and economic problems in the country. However, after 1996, the Indo-Russian relations began to improve slowly. Thereafter, India and Russia have jointly खत्म हो गया चैप्टर 45, 58 चल रहा है भाई साहब ये तो। ओके, चैप्टर इज फिनिश पीपलम। चाहिए चैप्टर एट ए ग्लांस है। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।